here is some small intro of Divakar sir. So Divakar sir is graduated from USIT University School of Information Technology, IP University. He worked for 2 years as an associated system engineer in Tata Consultancy Service Limited, and with prestigious clients like Decorate Journal of Military Intelligence (DHMI), Ministry of External Affairs, and etc. Currently, our Divakar sir is training youth in spiritual values in various colleges like IIT Jammu, NIT Hamirpur, Bharatiya Vidyapeeth, Delhi, and etc. and conducting seminars various based on Bhagavad Gita and other scriptures. So I let's proceed this today's seminar. I request to all the students, please close their mics and if possible then open their videos. और हम मिलेंगे अब सेशन के एंड में दोबारा. तो देन एंजॉय योर सेशन. थैंक यू सो मच. Okay. So thank you, Ashish. And my voice and my video is properly audible, visible to all of you. Somebody can respond or raise the hands. Okay, in chat box I can see. Okay, ठीक है. Thank you. Now my second question is, so we will do session in a very interactive way. ऐसा नहीं रहेगा कि one way ही session रहेगा. In between I will ask few questions so that we can interact also, because online platform is very difficult in propagating the knowledge. So how many of you want Hindi? हिंदी कितने लोग चाहते हैं? How many of want English? और how many want English? Hindi English mix. So you can reply 1, 2, 3. 1 for Hindi, second for English, and third for English. Hindi English mix. ठीक है, फटाफट you can respond in the chat box. Okay. So most of the students want third. ठीक है, जितना response आया. Students want Hindi English mix. Okay. Okay. So now my other thing, next question is, how many of you are from Sharda University? आप में से कितने लोग शारदा के हैं? There is the option of raising the hands. Yes. Or you can reply in chat box, जो whatever is convenient. आप में से कितने लोग शारदा यूनिवर्सिटी से हैं? No one. Okay, okay. Aditya is from Sharda. Okay. And how many of you are from first year of your any branch, engineering, medical, or whatever it is? फर्स्ट ईयर से कितने लोग हैं? पूछेंगे सर इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली सी आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस सो दैट आपके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको एग्जांपल्स एंड अदर थिंग्स आई कैन डिलीवर द सेशन अकॉर्डिंग टू यू. अदरवाइज यू आर एट डिफरेंट लेवल एंड आई एम डिफरेंट लेवल, तो नॉलेज प्रोपोगेट नहीं होगा. ओके, तो फर्स्ट ईयर से आई थिंक ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम फर्स्ट ईयर. गुड गुड. Okay, so first of all I thank Ashish and other organizers for organizing these wonderful sessions on Bhagavad Gita. And I like to appreciate and thank all of you also कि आप सारे students Sunday evening is like कि youth के लिए सबसे बहुत precious चीज होती है. You can go to some malls, some different places to visit. आप सब नोएडा से वैसे ही हैं, तो नोएडा में वैसे ही इतना ग्लैमर है. You can visit so many places, but still you have taken out your time. आप सब जो है अपना समय निकाल के आए किस चीज़ के लिए? For listening this message of Bhagavad Gita. So it's really appreciable. मैं आप सबको thanks करता हूँ and welcome करता हूँ for attending this wonderful seminar on the Bhagavad Gita. Okay, so in the last session, जैसे कि आशीष ने बताया कि हमने डिस्कस किया different ways people search happiness. आप देखोगे I'm generally I give sessions in NIT Hamirpur, NIT Himachal, and NIT Jammu. So there I find कि students they are doing like they can go to any extreme for getting the happiness. I can give you one example. Last year, what happened, and that
इन जनरली फोर्थ ईयर के हॉस्टल्स में वहां पे क्या रहता है, सिंगल रूम्स मिलते हैं। तो फोर्थ ईयर के हॉस्टल में 25 स्टूडेंट्स थे, दे आर टुगेदर स्टेइंग। अभी बोलोगे कि सर तो क्या बड़ी बात है, छोटे से रूम में रह रहे होंगे किसी के हॉस्टल रूम में। नॉट ओनली दे आर स्टेइंग, यू सी practically one day what the warden saw, warden क्या देखते हैं, they all are practically lying naked there. If without any clothes they are lying there. And why they are without any clothes? Because they are too much addicted to drugs. इतना ड्रग्स का एडिक्शन कर लिया था, इतना कर लिया था, that they don't know what they are doing, what they don't have any clothes. And all are very good students in terms of their so-called double quotes academics. They are having गेटिंग प्लेस्ड इन गुड कंपनीज, अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हो गए थे, सब कुछ हो गया था। एंड इवन हैविंग these so much achievements, what they are doing such a nonsense thing just for happiness. Okay, so that's why you see people in today's scenario, modern scenario, because of not lack of proper knowledge, lack of proper guidance, they are not able to get the proper knowledge. एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण क्या करते हैं, वो गलत 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 तरीकों से हैप्पीनेस को सर्च करने का प्रयास करते हैं। एंड इवेंचुअली दे लैंड्स अप इनटू द ट्रबल। और कॉलेज यूथ में तो आप सबने देखा होगा, आप में से कुछ फर्स्ट ईयर के होंगे, कुछ सेकेंड थर्ड ईयर के होंगे, तो एक्सपीरियंस कुछ लेवल का आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आता है तो कितना इतना शरीफ स्टूडेंट होता है, नहीं कि एकदम उसके मम्मी उसको घर से एकदम पूरा कंघी करके एकदम लड्डू के साथ भेजती हैं, और एकदम बहुत अच्छा से उसका बिहेवियर रहेगा, सबसे अच्छे से बात करेगा। एंड आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर ओनली, पता नहीं अभी आया है शारदा एंड अदर यूनिवर्सिटीज गलगोटिया व्हाट द थिंग इज, बट आई एम टॉकिंग ऑफ सीन ऑफ एनआईटी एंड आईआईटी, जिसका आप लोग अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ड्रीम रखते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा उनका स्टेटस हो जाता है बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन, नॉट लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड नॉलेज। दे प्रैक्टिकली अपने करियर तो क्या, अपने स्टडीज, करियर, हेल्थ, एवरीथिंग दे स्पॉइल। So you see, my dear students, in most of you are in the college right now, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जब आप एक सही हैबिट को इनकलकेट कर सकते हैं अपने लाइफ में। एंड दीज सेशंस ऑफ भगवत गीता एंड योर सीनियर्स एंड योर बैचमेट्स, दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। सो as much as possible, try to attend the programs, try to come in the classes. You will really find it will be very very helpful. अभी कोई होगा, अभी आपको कोई स्टूडेंट बोल रहा होगा कि नहीं सर, नहीं नहीं यार इतना टाइम कहाँ है, ऐसा है वैसा है। बट आफ्टर यू सी व्हेन यू विल पास आउट फ्रॉम द कॉलेज ना, देन यू विल अप्रिशिएट, तब आपको लगेगा अरे यार मेरे वो आशीष सर थे, या मेरा फ्रेंड आशीष था, उसने मेरे को गीता से कनेक्ट कर दिया था, सो आई वाज सेव्ड। आई कैन गिव यू सो मेनी एविडेंसेस, आपको कई सारे ऐसे मैं सीनियर से मिलवा सकता हूँ, हमारे एनआईटी है, नए आईआईटीज के, कि दे आर कि कैसे कैसे हैबिट्स में दे आर इन्वॉल्व, एंड बाय कनेक्टिंग विद द नॉलेज ऑफ भगवत गीता दे आर नाउ वेरी थैंकफुल कि अपने सीनियर्स को जिन्होंने उनको कनेक्ट किया, दे आर वेरी थैंकफुल टू देम फॉर कनेक्टिंग। सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि नॉट ओनली इन दिस सेशन, आप सारे के सारे रेगुलर सेशंस में आइए। ओके, सो स्टार्टिंग विद द टुडेज टॉपिक, कि पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया सर्च फॉर हैप्पीनेस के अलग अलग तरीके लोग सर्च करते हैं। आप इसी तरह से आप देखिए हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, वी ट्राई टू गेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स। हम अलग अलग तरीकों से नॉलेज को लेने का प्रयास करते हैं। सो नाउ द टॉपिक इज दिस 3 ways ऑफ गेनिंग नॉलेज, कि हम कैसे सही तरीके से अपने लाइफ में सही नॉलेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। द नॉलेज ऑफ भगवत गीता, द नॉलेज ऑफ गॉड, द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द नॉलेज ऑफ अबाउट मी, कैसे, व्हाट इज अ वे। बिकॉज यू सी, अगर आपको भारत में देखोगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हर एक व्यक्ति 1 घंटे का प्रवचन दे सकता है। एक रिक्शे वाला भी आपको मिलेगा तो वो क्या बोलेगा, वो आपको 1 घंटे का प्रवचन दे देगा किसके ऊपर, स्पेशलिटी के ऊपर। सो व्हाट इज द राइट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज, और क्या अलग अलग तरीके होते हैं, व्हाट इज द राइट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस इंटरेस्टिंग अपकमिंग सेशन ऑफ upcoming slides. We are going to discuss in the 3 different ways of gaining knowledge. Okay, so there are in different ways में से अगर हम डिस्कस करें, so there are various ways of gaining knowledge,
सो फर्स्ट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण, हम एक एक को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, सेकंड इज अनुमान प्रमाण, ओके, एंड थर्ड इज शब्द प्रमाण। हम इसको एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रत्यक्ष मीन्स, प्रत्यक्ष प्रमाण मीन्स जो भी हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर गेनिंग नॉलेज थ्रू अर डायरेक्ट पर्सन। जैसे आपने कुछ देखा, आपने कुछ देखा, आपने कुछ टच किया, कुछ फील किया, वॉट एवर नॉलेज यू आर गेटिंग बाय सीइंग, बाय टचिंग, बाय हियरिंग, बाय टेस्टिंग, बाय स्मेलिंग, उस नॉलेज को बोला जाता है डायरेक्ट परसेप्शन। बट आप देखिए, हम कितनी बार अपने लाइफ में देखते हैं कि जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं बाय 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 दीज सीइंग, बाय टचिंग, बाय हेयरिंग, तो जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट हो। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि आप देखिए, जब भी आप ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवलिंग के टाइम पे क्या लगता है, रेलवे से जब आप ट्रेवल करेंगे कि दैट द रेलवे लाइन इज अबाउट टू मर्जिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट्स नॉट मर्जिंग। ये क्या है, ये मर्ज नहीं कर रही, ये क्या है, ये हम सबको पता है, इट्स नॉट मर्जिंग एट एनी पॉइंट। ओके, सो सिमिलरली यू सी कि हम लाइफ में कई ऐसी चीजें देखते हैं, कई ऐसी चीजों पे बिलीव रखते हैं। देर आर थिंग्स विच वी सी बट डोंट बिलीव। आप देखो, कुछ ऐसी चीजें होंगी लाइफ में जिसको आपने देखा होगा लेकिन हम में से कोई बिलीव नहीं करता। जैसे आप देखो, कई बार ऐसा आप में से कितने लोग ने कोई कोई सी बीच पे गए हैं? आप बताइए, यू कैन रिस्पॉन्ड। कितने लोग कोई सी बीच पे गए हैं? एनी सी बीच, मुंबई, पुरी, चेन्नई, एनी प्लेस, एनीबडी, कोई विजिट किसी ने किया सी बीच? हाँ, यस यस, रिस्पॉन्ड क्विकली। नोबडी? ओके ठीक है, कुछ लोग गए हैं, शुभ गए हैं और बाकी ध्रुव नहीं गए, ठीक है। सो कभी कभी आप सी बीच पे जाएंगे या सी बीच पे नहीं भी गए हैं तो आप सिंपल एग्जांपल से देख सकते हैं। कभी ऐसे माउंटेन एरिया में जाएंगे तो वहां पे भी आपको क्या लगेगा, आप देखेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि लैंड और स्काई क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। बट इट नेवर मीट्स, हमें सबको पता है कि ऐसा मीट नहीं करेगा। सी बीच पे कभी जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि जो वो ओशन या सी है वो और जो स्काई है वो क्या कर रहा है, वो मीट कर रहा है सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट नेवर मीट्स। ओके, तो सिमिलरली यू सी देर आर थिंग्स, जैसे कि कभी आप कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई आई एम कि मैं मोटा हो गया, पतला हो गया, बट होता नहीं है ऐसा। वी ऑल नो दैट इट्स जस्ट इमेज का रिफ्लेक्शन है। आप में से कितने लोगों ने ये मिराज को एक्सपीरियंस किया है कभी? खासकर विशेषकर अभी बहुत गर्मियां चल रही हैं तो गर्मियों के समय पे कितने लोगों ने मिराज को एक्सपीरियंस किया? हाँ, किया है किसी ने मिराज एक्सपीरियंस? कि आप कभी रोड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो रोड पे आप देखेंगे क्या कि आपको लगेगा कि अरे आगे तो पानी है, लेकिन आगे जब वहां पे जब पहुंचेंगे तो कुछ भी नहीं है। यस, तो इसी तरह से आप देखोगे कि अगर आप साइंस में जाओगे तो ये बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आपको मिराज एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो एक्चुअल में पानी नहीं है, हम सबको पता है कि पानी नहीं है और हम मानते भी कि पानी नहीं है। हमें दिख रहा होता है लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं, हम नहीं इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। रेलवे ट्रैक का हमने एग्जांपल लिया। अभी हमने डिस्कस किया कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं देखते हैं, जो हम देखते भी हैं लेकिन फिर भी बिलीव नहीं करते हैं। नाउ विल डिस्कस फ्यू थिंग्स विच वी डोंट सी बट येट बिलीव, कि हम नहीं देखते हैं फिर भी हम विश्वास रखते हैं। हाँ, उसके उल्टा देखते हैं। जैसे अब में से किसी ने समय को नहीं देखा होगा, टाइम नहीं, जैसे अभी टाइम हो रहा है कि भाई 6:20, 25 मिनट ऐसा हो जाएगा, तो अभी इतना टाइम हो रहा है तो क्या होगा कि हम में से किसी ने देखा नहीं है, बट वी ऑल बिलीव इन टाइम। हम में से किसी ने, आप में से किसी ने महात्मा गांधी को नहीं देखा होगा, बट वी ऑल बिलीव कि भाई महात्मा गांधी हैं। भाई हम में से किसी ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का नहीं देखा होगा, बट वी ऑल बिलीव इन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। आप देखो, मैथ्स का एक पूरा फील्ड ही इमेजिनरी नंबर्स पे बन गया। इमेजिनरी नंबर नाम से इमेजिनरी है, लेकिन आप देखो कितना बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स मैथ्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये पूरा का पूरा मैथ्स का कैलकुलेशन किसी उस पे हो जाता है, अंडर रूट -1 आयटा पे पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। सिमिलरली हम में से हो सकता है कि कोई इंडिया से कभी बाहर भी ना गया हो सकता है दिल्ली से ही बाहर ना गया हो, बट स्टिल भी बिलीव कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए एग्जिस्ट करता है। हाउ इट्स देयर। हम नहीं भी देखते हैं फिर भी हम क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। ओके,
सो दिस मीन्स कि जरूरी नहीं है कि जो चीज हम देख पा रहे हैं अपने जीवन में वो सही हो, और केवल हम अपने देखने के ऊपर ही विश्वास कर लें कि यही चीज सही होगा. सेइंग इज नॉट जस्ट बिलीविंग. ओके, नाउ ये सी प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ और क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो बताया जाता है कि इन स्क्रिप्चर्स देयर आर 4 डिफेक्ट्स जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग पोजेस करता है. 4 डिफेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला डिफेक्ट होता है जिसको बोला जाता है इम्परफेक्ट सेंसेस. कि हमारी सेंसेस क्या हैं, इम्परफेक्ट. हम इसको एक एक को दोबारा से डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इम्परफेक्ट सेंसेस और सारे पॉइंट्स को. देन द बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट सेंसेस के कारण क्या होता है, वी बिकम इल्यूजन, हम भ्रमित हो जाते हैं. और व्हेन बिकम इल्यूजन व्हाट विल हैपन, हम इल्यूजन के कारण मिस्टेक्स करने लगते हैं, और जब मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक को हम क्या करते हैं, छुपाते हैं. सो फोर्थ इज चीटिंग प्रोपेंसिटी. ओके, तो हम एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. आप देखिए जैसे हमारी सेंसेस कैसे इम्परफेक्ट है, कैसे हम कह सकते हैं हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं. तो आप देखिए हमारा जो देखने का रेंज भी है वो क्या है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. अभी आप बताइए कि कई बार कोई बोल सकता है कि भाई कि कोई बोलेगा कि भाई आई एम सर्चिंग फॉर गॉड. तो आपको अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो भाई आप दिखाओ कहाँ पे हैं आपके भगवान. तो आप देखो अगर कोई ये कहता है कि भाई अगर गॉड भगवान एग्जिस्ट करते हैं और मेरे को दिखाओ भगवान कहाँ पे हैं, तो हम उनको बोलना चाहिए कि भाई क्या आप क्वालिफाइड हैं भगवान को देखने के लिए. वेरी सिंपल लॉजिक. आप देखो अगर कोई ये बोलता है कि देखो कि भाई अभी जैसे आज ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दोबारा से शपथ ले रहे हैं, और कोई बोले कि देखो भाई मैं आज तभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मानूंगा कि वो एग्जिस्ट करते हैं जब वो मेरे सामने मेरे से मिलने आएंगे. सो इट्स अ वेरी वेरी इलॉजिकल थिंग. उसी प्रकार से आप देखो बिकॉज ऑफ अवर इम्परफेक्ट सेंसेस हमारा जो देखने का रेंज है वो भी बहुत लिमिटेड है. हाँ, सिमिलरली हमारा जो सुनने का रेंज है वो भी बहुत लिमिटेड है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. आप देखो कभी कभी आप ने एक्सपीरियंस क्या होगा, एक मेरे फ्रेंड बता रहे थे कि उन्होंने एक फैक्ट्री में एक डिवाइस लगवाया. वो डिवाइस कैसा डिवाइस था कि जैसे ही उसको स्विच ऑन करते सारे चूहे इधर से उधर ऐसा वैसा करके ऐसा भागते. तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई देखो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. सारे चूहे के चूहे को लग रहा होता है ये लोग पागल हो गए, ये क्या कर रहा है, ये सब पागल होके इधर उधर घूम रहा है. तो चूहे को लगता है कि ये लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हैं. हमें कुछ नहीं एक्सपीरियंस होगा बट चूहों को एक्सपीरियंस हो रहा है. व्हाई? बिकॉज देयर रेंज ऑफ हियरिंग इज बियॉन्ड 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. सो दिस मीन्स कि हमारे भाई सुनने की, हमारे देखने की रेंज क्या है, बहुत ही लिमिटेड है. सिमिलरली आप देखिए कि भाई अब कोई बोल सकता है कि भाई देखो आपकी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, तो भाई हम क्या करेंगे, अपने सेंसेस को परफेक्ट बना लेंगे. कि भाई अगर हम सही से देख नहीं पाते हैं तो हम क्या कर लेंगे, हम लेंस लगा लेंगे. अगर हम सही से सुन नहीं पाते हैं तो सुनने का डिवाइस लगा लेंगे, और उससे हम क्या कर लेंगे, नॉलेज गेन कर लेंगे. तो देखिए तो इसके लिए भी क्या लॉजिक दिया, एक नोबेल प्राइज विनर थे इयान विग्नर. इवन इफ यू फोटोग्राफ स्टार्स, अगर हम स्टार का फोटोग्राफ भी ले लेते हैं, इवेंचुअली वी हैव टू टेक इन बाय आवर सेंसेस व्हाट द फोटो शोज. कि भाई देखो अगर कोई बोलता भी है कि ठीक है आपके हमारे सेंसर्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइस लगा लेते हैं और डिवाइस से एक्सेस कर लेते हैं. तो हम उनको क्या लॉजिक दे सकते हैं, तो यहाँ पे विग्नर जी बोल रहे हैं जो कि एक नोबेल प्राइज फिजिस्ट हैं, कि आप देखिए अल्टीमेटली आपको जो फोटो देखनी है या फोटो को जो विजुअलाइजेशन करना है वो तो आपको अपनी आंखों से ही करना है. दैट मीन्स कि आपकी सेंसेस इम्परफेक्ट है, तो जो भी चीजें आप एक्सेस करेंगे अपने सेंसेस से वो क्या होंगी, रिजल्ट्स विल बी इम्परफेक्ट. और इसी इम्परफेक्ट सेंसेस के कारण आप देखिए हम क्या हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं. कैसे भ्रमित हो जाते हैं हम, अब आप सबको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा. आप सारे एक्टिव हैं, मेरे साथ में हैं, ऑल आर विद मी, आप सब साथ में हैं, यस नो सम रिप्लाई. ठीक है, एक रिप्लाई आया है, तो अंश साथ में है, बाकी लोग सो रहे हैं शायद. ठीक है, आदित्य साथ में है, शुभ भी है, अखिल भी हैं, आकाश भी हैं. हाँ ठीक है, बाकी लोग भी एक्टिव हो सकते हैं. तो अब मैं आप लोगों से कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करवाऊंगा, तो आपको बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा और एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको जस्ट हम कुछ स्लाइड्स के बाद एक्सरसाइज करेंगे. तो उस एक्सरसाइज में जस्ट यस आपको क्या करना है कि आपको कुछ पिक्चर्स शो होंगी, उस पिक्चर्स में
आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि कैसी वो पिक्चर्स लग रही है, ठीक है, आप कैसे उसको परसीव कर रहे हो, ठीक है। आई विल आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर। सो आप में से कितने लोगों को इस पिक्चर के अंदर व्हाइट ट्रायंगल दिख रहा है? यस और नो, व्हाइट ट्रायंगल है इसके अंदर? कितने लोग कह रहे हैं इसके अंदर व्हाइट ट्रायंगल है? तो जिनको लग रहा है वो यस लिखे, जिनको नहीं लग रहा है वो नो लिखे। तो यस, सभी को यस लग रहा है। आप देखिए एक्चुअल में कोई व्हाइट ट्रायंगल है नहीं, लेकिन हमें लग रहा है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। लग रहा है बट देयर इज नो व्हाइट ट्रायंगल, एक सिंपल स्पेस से वो व्हाइट ट्रायंगल बन गया। ओके, आई विल गिव फर्दर एग्जांपल्स। इस पिक्चर के अंदर, इस पिक्चर के अंदर 3 इमेजेस हैं, ठीक है। तो जनरली जितनी बार मैंने ये सेशंस लिया, आई हैव टेकन दिस सेशन मोर देन 100 टाइम्स, ठीक है। मैंने सेशंस 100 बार से भी ज्यादा कई स्टूडेंट्स को दिया। तो मेरे एक्सपीरियंस में 100 में से 80%, 80 to 85% स्टूडेंट्स ने इस इमेज के अंदर, इस पिक्चर के अंदर 2 इमेज तो आइडेंटिफाई कर ली थी, लेकिन तीसरी इमेज लोग नहीं कर पाते थे। तो मैं देखता हूँ कि आप में से कितने लोग जो हैं 3 पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यस, पहला कौन सा पिक्चर है आप बताइए। आई थिंक आशीष यू कैन अनम्यूट ऑल्सो। अगर आप सबको अनम्यूट का एक्सेस दे रहे हैं तो वो बोल भी पाएंगे, अदरवाइज आप लोग चैट पे लिख भी सकते हैं। यस, तो आप फटाफट बताइए कि पहली पिक्चर कितने लोग पहली पिक्चर बताइए। ओके ठीक है, एक पिक्चर है लेडी की। कौन सी लेडी है? ओल्ड लेडी है, यंग लेडी है? बताइए, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए, तब हम देखते हैं कितना इंटेलिजेंस है। ओके, यंग लेडी, ठीक है। यंग लेडी आपने एक पिक्चर बताया, ठीक है, वो एक हो गया। फिर सेकंड इमेज बताइए, इसके अंदर कौन सी है? तो एक इमेज में आपको बताया, तो आप हो सकता है एक ही इमेज को डबल कर रहे हो। इसमें एक इमेज जो आप लोगों ने बताया, एक यंग लेडी एक विंडो पे बैठी है और 2 लोग बैठ के, एक गिटार बजा रहा है और दूसरा सुन रहा है। तो ये सिंगल पिक्चर है, ठीक। अब हम आते हैं सेकेंड इमेज पे। ओल्ड लेडी, यंग लेडी एंड मेल सिंगिंग, ठीक है। तो ओल्ड लेडी वाला आपने बताया, तो सेकेंड इमेज हम मान के चलते हैं इसमें कौन सी है कि एक ओल्ड लेडी और एक ओल्ड मैन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आमने सामने। तो ये 2 इमेज हो गई। और उसके इयरिंग्स हैं, ओल्ड लेडी के एक इयरिंग्स हैं जो कि एक बॉटल के शेप में वहां पे रखे हुए हैं। ये 2 इमेज हो गई। अभी थर्ड इमेज इसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है। आप देखते हैं कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं एक थर्ड इमेज। यस, आई जस्ट वाज वेट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स का। सबसे पहले रिस्पॉन्स कौन करता है थर्ड इमेज का? हु इज कीन ऑब्जर्वर? ओल्ड मैन ईयर्स, दैट्स वो उसी में ही है, उसी के अंदर इंक्लूडेड है उसकी। ओल्ड मैन वो पूरा एक सिंगल इमेज मैंने बताया ना। लेडी, लेडी भी हो गया, ओल्ड मैन ईयर भी हो गया। ओके, लेट्स सी फटाफट देखते हैं, औरों के आंसर देखते हैं, और लोग भी रिप्लाई करिए। लेट्स सी द रिस्पॉन्सेस। ओके, आई थिंक कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो आप देखिए आप में से कितने लोग जो है ओल्ड में, हाँ ये हो गया नितेश, ये हो चुका है। ओल्ड मैन ओल्ड लेडी फेसिंग ईच अदर, ये सेकंड इमेज हो चुकी है। यंग लेडी और एक व्यक्ति गिटार बजा रहा है, एक बैठा हुआ है बॉटल के साथ, ये सेकंड इमेज है। तीसरी इमेज आप देखिए इसके अंदर कौन सी, जो हम देख सकते हैं तीसरी इमेज है। आप में से कितने लोग जो है देख पा रहे हैं कि एक ट्रॉफी है, एक ट्रॉफी की शेप में एक चीज रखी है? कितने लोग देख पा रहे हैं बीच में? हाँ, कैप होल्ड किए हुए, ठीक है, वो तो है ही। तो कितने लोग जो है एक ट्रॉफी को देख पा रहे हैं जस्ट ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन के बीच में? आप में से कितने लोग देख पा रहे हैं? यस, नो, हाउ मेनी ऑफ कैन सी? बताइए फटाफट रिप्लाई करके। हाउ मेनी ऑफ कैन सी? हाँ, देख पा रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में देयर इज नो ट्रॉफी बट इट अपीयर्स। सो दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। कैसे आप देखिए कि हम क्या हो जाते हैं, इल्यूजन हो जाते हैं। इसी तरह से हाइट पैराडॉक्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये सारे सेम हाइट के हैं, हमें क्या लग रहा है? अच्छा, आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये इसमें जो फ्लोरेट्स हैं ये मूव कर रहे हैं? ध्यान से देखिए और बताइए कितने लोगों को लग रहा है ये फ्लोरेट मूव कर रहे हैं? कर रहे हैं, यस बताइए। हाँ देखिए, लेकिन ये जेपेग इमेज है, ये कोई जीआईएफ इमेज नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है ये। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पूछते हैं आपसे। थैंक यू, आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड करें। आप में से कितने को लग रहा है ये सिलेंडर की तरह मूव कर रहे हैं, ये इमेज?
लग रहा है किसी को? यस और नो? यस, इट्स एक्चुअली ये भी क्या है, इट्स सिंपली अ जेपेग इमेज बट इट अपीयर्स टू, ऐसा हमें लग रहा है। ओके, सिमिलरली इस इमेज में आप देखिए, एक तो क्या है, एक एक फ्लाईओवर है एंड द सेकंड इज द कास्टल ऑफ शिप्स। सो सी, इसी तरह से आप देखिए हम क्या देखते हैं कि वी बिकम इल्यूजन, हम बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट सेंसेस हम क्या हो जाते हैं, बहुत भ्रमित हो जाते हैं अपने लाइफ के अंदर। और इसी भ्रम के कारण हम क्या करते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं अपने लाइफ में। और कई बार आप देखिए ये मिस्टेक्स इतनी खतरनाक हो जाती हैं कि ये मिस्टेक्स एक पूरी की पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक हैवॉक बन जाती है। जैसे आप में से कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो आप में से आप बताइए कि वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोला जाता है? आप में से किसी को पता हो तो, वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोला जाता है? हाँ, somebody unmute and unmute करके बता सकते हैं। वेस्टिजियल, what do you mean by vestigial organ in the body? ठीक है, मैं बताता हूँ। वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स दैट ऑर्गन विच डजंट हैव एनी यूज इन द बॉडी, जो कि वेस्ट है एक तरह से बॉडी का। तो साइंस में कुछ मेडिकल रिसर्चर्स ने इन अर्ली 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 मेडिकल साइंसेस, जब ये मेडिकल साइंस जस्ट अपने बिगनिंग स्टेज पे था, तब ऐसा माना जाता था कि बॉडी के अंदर दे कंसिडर 13 वेस्टिजियल ऑर्गन, और उनमें से आप सोचिए कि ब्रेन को एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता। और उनके अकॉर्डिंग ब्रेन का क्या काम है, केवल ब्रेन का काम है कि जैसे एक व्हीकल के अंदर रेडिएटर का काम होता है, रेडिएटर क्या करता है, व्हीकल को ठंडा करता है, तो ब्रेन का काम क्या है, जस्ट टू कूल डाउन द ब्लड, सिंपली दिस। तो आप सोचो कि अगर इसी के चलते, अगर वो, अगर शरीर से ब्रेन निकाल देते तो क्या होता, तो पर्सन विल बी फिनिश्ड। so that's why you see we commit mistakes. Similarly पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि सारे इमोशनल बैलेंस को मैनेज करने के लिए काम आता है, उसको वेस्ट माना जाता था, वेस्टिजियल ऑर्गन। एंड यू सी, इसी तरह से फिजिक्स के अंदर एक हबल कांस्टेंट होता था। हबल कांस्टेंट क्या करता है कि हबल कांस्टेंट एक इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में काम आता है। उसका वैल्यू इतनी बार चेंज कर दिया कि साइंटिफिक फील्ड में उसको हबल कांस्टेंट की जगह हबल वेरिएबल बोला जाता है, बट डिस्टेंस विल रिमेन सेम। आपके हबल कांस्टेंट चेंज करने से वो वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा। ओके, इसीलिए आप देखिए these type of small mistakes can lead to very big disasters in the society। उसका एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि कई बार ऐसे कितने कितने ऐसे केस स्टडीज आते हैं कि जिस इतने इतने छोटे छोटे मिस्टेक्स के इट विल क्रिएट अ लार्ज डिजास्टर इन द सोसाइटी। ओके, तो पहला हमारा डिफेक्ट क्या था प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर, कि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट थी। दूसरा हमारा डिफेक्ट था हमारे की बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट सेंसेस हम मिस्टेक्स करते थे। हम सॉरी, वी बिकम इल्यूशन, हम भ्रमित हो जाते थे। भ्रमित होने के कारण हम क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। और मिस्टेक्स जब हम करते हैं तो मिस्टेक्स को हम छुपाते हैं, दैट इज कॉल्ड चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी आप सब एक्सपीरियंस्ड होंगे और सब एक्सपर्ट होंगे एग्जाम्स के दौरान, कैसे लोग हर तरीके हर मीन्स यूज कर डालते थे चीट करने के लिए। कि हमारे एक बारी एग्जाम्स चल रहा था, सेमेस्टर एग्जाम, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, जमीन के ऊपर ही लिख डाला पूरा, आधा पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लिख डाला। फिर टीचर ने बुलाया फिर स्वीपर को, तो पूरा जमीन के ऊपर पूरा पोछा लगवाया कि भाई साफ करो इसको, इतना आंसर लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो पीपल हैव द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ चीटिंग। सिमिलरली आप में से कितने लोगों ने टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया है? हाउ मेनी हैव डन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टाइट्रेशन? साइंस में किया है किसी ने टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट? यस और नो? हाँ, कई आप, ठीक है, फिर एग्जांपल लेते हैं टाइट्रेशन का आपको। तो एक टाइट्रेशन के जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक बार लेट सपोज कि कई बार ऐसा होता था ना कि आप, कि जब आप रीडिंग ले रहे हो, तो टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि आपने रीडिंग लिया, भाई आपका रीडिंग आ रहा है कि 18 18 19 ऐसा रीडिंग आ रहा है, और बाकी सबका रीडिंग आ रहा है 32 34 33 32 33 4 30। आपको लग रहा है मेरा ही रीडिंग क्यों गलत आ रहा है। आप क्या करते हो, with the approximation error of +5 ± 5%, the result is 32%। आपने भी 32% करके आ गए। एंड फाइनली जब रिजल्ट आता है और जब टीचर अनाउंस करती है, क्या आप सब बच्चों ने एक ही मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक किया कि भाई जिसके कारण आप सबका रीडिंग टाइट्रेशन का ये आया, एग्जैक्ट आंसर क्या था? द एग्जैक्ट आंसर इज 19 और 18.5। अरे यार मैं क्यों मिस्टेक करके आ गया।
ओके, सो दिस टाइप ऑफ चीटिंग प्रोपेंसिटी इज देयर। इसीलिए आप देखो कि हम लोगों के अंदर भी देखते हैं इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। नहीं, अभी कोई मेरे को बता रहा था आज मॉर्निंग में ही कि नीट का इतना बड़ा स्कैम हुआ है अभी कोई, उसमें कितना लोग चीट कर रहे हैं। तो हर लेवल पे पीपल हैव एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल हैव दिस चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो आप देखिए, अब कोई बोल सकता है कि अगर सर हमें फिर नॉलेज लेनी है तो हम कहाँ पे जाएं? हम अगर अपनी सेंसेस के थ्रू नॉलेज नहीं लेते हैं तो हम कहाँ पे जाएं? व्हाट इज द वे ऑफ गेनिंग नॉलेज? सो आप देखो, वी हैव, हमारे पास सेंसेस इम्परफेक्ट हैं जिसके कारण हम इल्यूजन हो जाते हैं, इल्यूजन के कारण मिस्टेक्स करते हैं, और मिस्टेक्स को छुपाने के लिए हम चीट करते हैं। सो व्हाट इज द वे? सो आप देखो, अब सेकंड वे जो हमने डिस्कस किया था नॉलेज गेन करने का, वो तरीका क्या था? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मीन्स थ्योरी बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशंस। कि बहुत सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप में से कोई हॉस्टल या पीजीज में रहता है? हॉस्टल या पीजी में, यस और नो? हॉस्टल वाले यस कर सकते हैं, हॉस्टल या पीजी, ओके, कई स्टूडेंट हैं। तो आप सोचिए, कई बार कभी आप हॉस्टल में आप रह रहे हो, और हॉस्टल के आप किसी स्टूडेंट के रूम के बाहर से निकले, और जैसे ही आप बाहर से निकल रहे हो, आपको क्या आवाज आ रही है? जस्ट किल हिम, जस्ट किल हिम, जस्ट किल हिम, किसको मार डालो, मार डालो, खत्म कर दो इसको। आपने तुरंत वार्डन सर को फोन लगा दिया, सर यहाँ पे कोई किसी को मार रहा है, ये मार डालेगा, फटाफट आइए सिक्योरिटी के साथ। और जब जैसे ही वार्डन सर पूरा सिक्योरिटी के साथ आए, रूम खोला, रूम खोल के क्या देखा कि वहां पे तो ड्रामा प्रैक्टिस चल रही थी, या कोई वीडियो गेम खेल रहा था, हाँ, या कोई गेम खेल रहा था। तो आप देखो, आपने क्या किया? आपने कुछ ऑब्जर्वेशन पे कुछ कंक्लूजन निकाल लिया, जो कि क्या हो सकता है, जो कि हो सकता है कि सही भी हो, लेकिन बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑब्जर्वेशन गलत भी हो जाए। ओके, सो दैट्स व्हाई कि हम, हाँ, कि जो नॉलेज हम गेन करते हैं कि किससे, अनुमान प्रमाण से, दैट इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, और हाफ नॉलेज समटाइम्स प्रूव टू बी अ डेंजरस थिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे, कि जैसे अभी 2020 में आपका कोविड आया था, सो उसी तरह से इन 1300 व्हाट हैपन, द एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक उस टाइम पे भी आया था, जिसको बेसिकली इन द यूरोपियन कंट्रीज, जिसको प्लेग बोला जाता है, बिबॉनिक प्लेग। तो कई सारे डॉक्टर्स ने रिसर्च किया कि भाई देखो, बिबॉनिक प्लेग क्यों फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, क्यों फैल रहा है। तो उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि उन्होंने कंक्लूजन पे आया कि बिबॉनिक प्लेग किसके कारण फैल रहा है? कैट्स के कारण फैल रहा है। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि कैट्स को, पूरे की पूरी सिटी में कैट्स को मारना स्टार्ट कर दिया, जहां पे भी कैट्स दिखते, दे स्टार्ट किलिंग द कैट्स। लेकिन हुआ क्या कि कैट्स को किल करने के बाद, जस्ट इन फ्यू डेज ओनली, कुछ ही दिनों बाद, बिबॉनिक प्लेग पूरा 10 टाइम्स पूरा स्प्रेड होने लगा। अभी तो एकदम हैरान हो गए सारे के सारे कि भाई ये क्या, ऐसा कैसे हुआ कि भाई ये इतना इतना क्यों और फैल गया, हमने तो कैट्स को ही मार दिया। उन्होंने और रिसर्च किया, जब और रिसर्च किया तो उनको क्या पता लगा? cats are not the real cause of spreading bubonic plague, rats are the real cause, and now it was too late. Why? बिकॉज आप देखो, आपने जो कैट्स क्या करती है, रैट्स को खाती है, आपने सारी कैट्स को मार दिया, अभी को रैट्स कौन कंट्रोल करेगा? एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल मिस्टेक आप देखो, सो मेनी पीपल दे लॉस्ट देयर लाइफ। ओके, सो दैट्स व्हाई, अगर हमें देखिए, हमें किसी किसी कोई हम अगर हम कोई सही नॉलेज को गेन कर रहा है, सही नॉलेज को एक्सेप्ट करना है अपने जीवन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्रोच अ बोनाफाइड अथॉरिटी। जिसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, लेट सपोज कि एक 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 हाथी है, ठीक है, और हाथी को 6 ब्लाइंड मैन क्या कर रहे हैं? 6 ब्लाइंड मैन वो क्या करना चाहते हैं? वो हाथी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि हाथी कैसा दिखता है। तो जो पहला वाला व्यक्ति है, उसने हाथी के क्या पकड़ रखा है? हाथी का जो जो टस्क है उसको टच कर रखा है। सेकंड वाले ने जो है टेल को टच कर रखा है। थर्ड वाले ने कान को टच कर रखा है। फोर्थ वाले ने ट्रंक को टच किया है। फिफ्थ वाले ने जो है जो ट्रंक को टच किया हुआ है। सो आप देखिए, जितने सारे के सारे हैं, वो सब के सब क्या क्या पहुंचते हैं? कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जो जो जिसने फर्स्ट वाले ने जिसने ट्रंक को टच किया है, वो बोल रहा है कि भाई हाथी कैसा दिखता है? हाथी दिखता है एक सांप की तरह। सेकंड वाले ने बोला नहीं 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 भाई, सांप की तरह नहीं, हाथी कैसा दिखता है? हाथी दिखता है एक रस्सी की तरह। थर्ड वाले ने बोला भाई रस्सी नहीं है भाई, एक एक्स की तरह दिखता है। फोर्थ वाले ने बोला कि नहीं, आप सब गलत हो,
फोर्थ वाले ने बोला कि एक दीवार की तरह है हाथी, फिफ्थ वाले ने बोला कि नहीं देखो हाथी क्या है, एक एरो की तरह है, और सिक्स वाले ने बोला कि हाथी क्या है, एक एक पेड़ के ट्रंक की तरह। सो अब आप, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, व्हाट डू यू थिंक, ऑल दिस सिक्स ब्लाइंड मैन आर राइट और रॉन्ग? ये छह के छह जो ब्लाइंड अंधे व्यक्ति थे, ये सही थे या गलत थे? बताइए, दे आर राइट और रॉन्ग? लिखिए राइट और रॉन्ग, रिप्लाई फास्ट। ओके, कई लोग कह रहे हैं राइट, कई लोग कह रहे हैं रॉन्ग। हाँ, अल्टरनेटिव आंसर्स आ रहे हैं, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग। ओके, तो यस, दे आर राइट इन देयर पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव में वो राइट थे, बट इन टोटल पर्सपेक्टिव दे आर नॉट राइट। नहीं, हाथी कोई सांप की तरह या कोई रस्सी की तरह थोड़ी ना दिखता है। तो इस इन सबको जब नॉलेज गेन करना था, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंक्लूड किया कि भाई हमें कोई ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करना पड़ेगा जिसके के पास क्या है, जिसके पास प्रॉपर आंखें हैं, जिसके वन हु कैन सी प्रॉपरली। तो दे ऑल अप्रोच इंटेलिजेंट पर्सन हु इज हैविंग द आइस। तो उस व्यक्ति ने बताया कि देखिए आप सब ठीक हैं, लेकिन आप कि भाई हाथी क्या है, हाथी के पैर ऐसे हैं, नाक ऐसी है, पेट ऐसा है, तो पूरा टोटालिटी में बताया। उसी तरह से आप देखिए, इफ वी वांट टू एक्सेस द ट्रुथ, अगर हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्रोच द बोनाफाइड अथॉरिटी। इसको बोला जाता है शब्द प्रमाण। जैसे कि आपको एक वीडियो में शो करता हूँ, देन it's some problem in playing video. ठीक है, ये दिस प्रॉब्लम in playing the video, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट। माय स्लाइड इज विजिबल, आप लोगों को मेरी स्लाइड दिख रही है? यस और नो? ओके, आई विल जस्ट कंक्लूड माय पॉइंट। तो इसी तरह से आप देखिए, अगर हम सबको क्या करना है, इफ यू वांट टू नो द रियल ट्रुथ, अगर हमें सही में क्या करना है, इफ यू वांट टू एक्सेस द ट्रुथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द बोनाफाइड अथॉरिटी। जैसे कि आप देखिए कि अगर आपको कोई नया डिवाइस चलाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अभी तो जैसे पहले नया नया जब हम लोग छोटे थे मोबाइल खरीदते थे, तो क्या होता था कि वी गॉट सम मैनुअल्स। अभी तो सबको ऑपरेट करना आता है, कैसे करते हैं, बट जब छोटे थे तो मैनुअल आता था। या अभी कभी आप कोई नई डिवाइस खरीदो या कोई नया प्रोडक्ट यूज करो, तो यू रेफर द मैनुअल। उसी प्रकार से आप देखिए, इफ वी वांट टू नो अबाउट द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, कि अगर हमें इस जीवन के बारे में जानना है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद द गॉड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू वी हैव टू सी द मैनुअल ऑफ लाइफ। और वो मैनुअल लाइफ लाइफ क्या है, दैट इज, उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को बोलते हैं वेदास। वेद वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वो बोनाफाइड अथॉरिटी है, जो कि फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। जैसे कि छह ब्लाइंड मैन ने एक वाइज मैन को अप्रोच किया, उसी तरह से वेदास जो है वो क्या है, दे आर द अथॉरिटीज जो कि हमें बताते हैं कि नॉट जस्ट अबाउट द जनरल नॉलेज, इट टॉक्स अबाउट द गॉड नॉलेज। तो आप, कोई बोल सकता है कि भाई कि भाई हम कैसे वेदों पे विश्वास रख लें, हम इसको नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करेंगे। बट इन शॉर्ट आप देखिए कि जिस प्रकार से अगर एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को अगर जानना है कि मेरी माता कौन है, मैं उसको जानना है कि मेरे पिता कौन है, तो एक तरीका तो क्या, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करा है। और अगर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करा है और लेट सपोज कि 100 लोगों के मन में अगर वो डीएनए फिंगर कराता है, तो इट टेक्स मोर देन 50 years टू नो, उसको जानने में, उसको ये जानने में पता लगेगा कि उसके पिता कौन है। और दूसरा तरीका क्या है, सिंपली ही पुट फेथ ऑन हिज मदर, अपने मदर पे फेथ करे एंड आस्क दैट हु इज माय फादर इज, ही विल गेट द नॉलेज। उसी प्रकार से आप देखिए
when we put the reasonable faith on our Vedic scripture, हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि हम कैसे अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर रीजनेबल फेथ को रख सकते हैं। तो जब हम रीजनेबल फेथ रख के हम क्या करते हैं, जब वैदिक सेक्शंस वैदिक वैदिक नॉलेज को पढ़ते हैं, तो हम जान पाते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ गेटिंग नॉलेज, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, एंड व्हाट इज द वे of what is the purpose of this human form of life। इस नॉलेज को हम सही तरह से एक्सेप्ट कर पाते हैं, जान पाते हैं अपने जीवन। ओके, इन दिस वे, in short, in concluding with the session, हम conclude करते हैं सेशन पे कि what is the right way of gaining knowledge, the right way of gaining knowledge, complete knowledge। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हमें देख के कुछ भी नॉलेज नहीं मिलता है या हमें सुन के नॉलेज नहीं मिलता, वो नॉलेज मिलता है, उस अभी आप देख के सुन के ही नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए कि हमें कंप्लीट नॉलेज कहाँ से हम जान सकते हैं, दैट्स फ्रॉम द वेदिक स्क्रिप्चर्स, हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी। ओके, सो मैं रिवाइज करता हूँ, हमने आज क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, और तीसरा शब्द प्रमाण, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया। शब्द प्रमाण मीन्स हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी। फिर हमने डिस्कस किए कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर क्या मिस्टेक्स हैं, तो हमने 4 डिफेक्ट डिस्कस किए। पहला 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 डिस्कस किया हमने कि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया कि इम्परफेक्ट सेंसेस के कारण हम क्या हो जाते हैं, इल्यूजन हो जाते हैं। तीसरा हमने डिस्कस किया बिकॉज ऑफ इल्यूजन वी कमिट मिस्टेक्स, एंड टू हाइड दोज मिस्टेक्स व्हाट वी डू, वी चीट अदर्स। ये 4 डिफेक्ट हैं जिससे कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रॉपर नॉलेज को नहीं ले पाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया अनुमान प्रमाण में, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अनुमान से गलत नॉलेज को गेन कर लेते हैं कई बार, या सही नॉलेज को नहीं ले पाते, और इस half knowledge can be too much dangerous। And finally, the most reliable and definite way of obtaining knowledge is the शब्द प्रमाण, कि hearing from bona fide authority। और वो bona fide authority कौन है, that is the Vedic scriptures, जिसके हम ऊपर हम reasonable faith रख सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस इसी के ऊपर करने वाले हैं कि कैसे हम मान लें कि भाई जो हमारे शास्त्र हैं आर वेदास माइथोलॉजी, ये भाई ये क्या कि माइथोलॉजी है या कोई हिस्ट्री है या फैक्ट्स है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में आने वाले डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ आई होंगी सेशन में। some points you have learned few things in the session, so keep coming and in the session now you all can ask questions, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। so over to you Ashish and other students, you all can proceed further with the sessions। thank you। Thank you so much, Divakar sir, for this wonderful session। और सेशन में बच्चों हमने बहुत कुछ जाना, स्टूडेंट्स कि जैसे 3 वेज ऑफ नॉलेज के बारे में बताया और हमने लास्ट में कंक्लूड भी बहुत सुंदर तरीके से किया उसको। तो आपकी कोई क्वेश्चन हो तो सर से वो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन इस सेशन से लेके या फिर जनरल कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो सर इज हियर, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स और यू कैन ओपन योर माइक टू आस्क। ओके सर, इसमें ना एक जनरल क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रह सकता है, ये चीज इट इज मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों का जनरल क्वेश्चन रहता है कि सर जैसे हमने शब्द प्रमाण पे बोला कि शब्द प्रमाण इज वेरी ऑथेंटिक और हम रिलाई कर सकते हैं, और हियरिंग फ्रॉम नॉलेज फ्रॉम द बोनाफाइड। तो पहला तो लोग बोल सकते हैं कि फिर वापस हम अपने जो सेंसेस हैं उसी से, क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, तो हम जो नॉलेज गेन गेन करेंगे उससे तो वो भी एक इम्परफेक्ट सेंसेस से गेन करेंगे, तो बाद में तो फिर वही चीज हो जानी है, तो उसको कैसे समझ सकते हैं? हाँ, इसीलिए आप देखिए शब्द प्रमाण क्या है, वॉट एवर द शब्द प्रमाण इज गिविंग, शब्द प्रमाण जो भी नॉलेज आपको दे रहा है दैट इज फ्री फ्रॉम, इसलिए उसको बोला जाता है अपौरुषेय, दैट वॉट एवर द नॉलेज वी आर गेटिंग फ्रॉम बाय द शब्द प्रमाण, दैट इज द वर्ड्स ऑफ गॉड। और फिर जब हम उस नॉलेज को लेते हैं, सो द प्रोसेस इज समथिंग कि वो प्रोसेस ऐसा है, योर सेंसेस बिकम प्योरीफाई, एंड व्हाट विल हैपन
कि जब आप उस नॉलेज को गेन करते हैं, उस प्योरिफाइड सेंसेस, जब आपके सेंसेस प्योरीफाई होती हैं, एंड इट बिकम्स फ्री, इट गेन्स द परफेक्ट नॉलेज. ओके, कि दैट द प्रोसेस इज देयर, दैट आफ्टर गेनिंग नॉलेज फ्रॉम द शब्द प्रमाण, द सेंसेस विल बिकम प्योरिफाइड एंड यू कैन गेन नॉलेज इन अ प्रॉपर वे. आप सही ज्ञान को ले पाते हैं. द प्रोसेस इज लाइक दैट. Thank you so much, Diwakar sir, for this wonderful answer and the wonderful session also. So, students, we thank Diwakar sir on the behalf of all students for उन्होंने हमारे लिए समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से और हमको इतना वैल्यूएबल और इतना साइंटिफिक अच्छा सेमिनार हमको दिया. So, students, this is not end. We will come next Sunday with another beautiful scientific intellectual seminar, and we will reveal the name and the speaker of the session soon. So stay tuned, students, for coming sessions. Thank you so much for joining for the session. Thanks a lot. Thank you. Okay, thank you everyone.